Hello friends, welcome to the lecture of mathematics. This is fifth video on the lecture of matrix chapter. Till now we have studied many things. In our last lecture we have studied operation of matrices, in which the first one is addition or subtraction, scalar multiplication and multiplication of matrices. Out of these three, the multiplication of matrices is very important. Addition or subtractions is quite a simple. You just simply need to add each and every elements, corresponding element, I can say. Corresponding element means the first one with this one and first one with this one. If you add these two, again corresponding element for second position, for third position, you will find addition. Similarly, subtractions can be possible. And the note is all the property of differences of matrices are similar to addition. जब सिमिलर सब्ट्रैक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी एडिशन में मैच होगी. इट मीन्स व्हाट के एडिशन इज सिमिलर टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू एडिशन. Scalar multiplication is what? If we multiply any scalar quantity like this 2 or 3 or any k, if we multiply scalar quantity to the matrix, then definitely that particular scalar quantity will multiply to each and every element. सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. एज यू कैन सी, इफ यू हैव a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, then 2a इक्वल टू 2 4 6 8 10 12. We have doubled every elements. So the scalar multiplication is also simple. Then multiplication of matrices, we have solved 3 to 4 or 5 questions, and I have given 2 questions in homework also. As you can see, I have given these 2 questions in homework for the multiplication in our last lecture. I hope you have done these 2 questions also. If you are having any doubts in the multiplication of matrices, then keep watching again and again same videos, or you can ask those doubts in my lectures, live lectures that I will take today. In our last lecture I have said that I will not cover this थियोरेटिकल पोर्शन. मैंने इस थियोरेटिकल पोर्शन को कवर नहीं किया था. उसका रीज़न यही था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही एक इतना बड़ा टास्क है समझाने में कि अगर उसकी थियरी में गए तो मे बी वी वेल कन्फ्यूज, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. एंड मे बी यू विल स्टक विद द सिचुएशंस. अगर आप स्टक हो जाते सिचुएशन में, समझ नहीं पाते, तो डेफिनेटली वी कुड नॉट हैंडल दोज लेक्चर्स. सो वो लेक्चर को स्पेशली मैंने मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को समझने में ही निकाला था. नाउ विल सी व्हाट इज थियरी. वेल, थियरी कैन बी इजीली अंडरस्टूड इफ वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस. दोनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए उसके बारे में अगर पता है तो डेफिनेटली थियोरेटिकल पोर्शन भी इजी है. और क्या बोलती है थियरी? तो पहला पॉइंट जो है वो ऐसा है कि सपोज, अगर मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर 3 into 2 है, 3 into 4 है, और कोई मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर से 4 into 5 है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन सी आ रहा है उसका ऑर्डर हमेशा ही 3 into 5 आएगा. मतलब यू विल फाइंड दिस 2 पोजिशंस in final answer, and to multiply this 2 matrix we should have this 4 and 4 to be equal. और यहाँ पे यही लिखा है, the product of 2 matrix A and B means matrix AB is defined only if, मतलब AB का multiplication तभी डिफाइन होगा जब number of column of A की नंबर ऑफ कॉलम कहाँ मिलती है भाई? पीछे ना. नंबर ऑफ रो आगे होती है और नंबर ऑफ रो पीछे होती है. सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी. मतलब बी की नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए. सो नंबर ऑफ कॉलम फॉर ए, इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी. इफ इट हैपन्स देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट. सो ये रूल्स अगर पता है तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया. चलो खत्म. The second point, if A is M cross N matrix and B is N cross P matrix, then AB is M cross P matrix. यही मैंने यहाँ पे समझा दिया. अगर ये 3 cross 4 है, ये 4 cross 5 है, तो AB का मल्टीप्लिकेशन जो C होगा वो कौन सा होगा? 3 cross 5.
मतलब अगर ये दोनों सिमिलर है तो आंसर वुड बी m क्रॉस p। सी m क्रॉस p, तो फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों पोजीशन को मिला के जो मिलता है वही ऑर्डर हमारा आंसर में आता है। दैट इज वॉट द सेकंड पॉइंट। इट इज़ अगेन कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर एंड ये पर्टिकुलर जो थियरम मैंने समझाई यहाँ पे उसमें कवर हो गया। इन जनरल, बस जनरल वाली डेफिनेशन तो हमेशा ही सभी थियरी में आती है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे। अगर ए कोई ए आई जे एम क्रॉस एन है, बी है जो बी आई जे एन क्रॉस पी है, तो ए बी क्या होगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, देखो ये एन और ये एन सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हमारा फाइनल ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, एन क्रॉस पी। सो आवर फाइनल मैट्रिक्स ए बी इज ऑलवेज एम क्रॉस पी। इट इज सिंपल टास्क। एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। वंस अगेन एक बार बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी रो, पहले वाले मैट्रिक्स की रो देखनी है, दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम देखनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। बाय डूइंग दिस एक्टिविटी यू कैन फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कैसे पोजीशन डिफाइन करनी है, इफ़ यू हैव डाउट go further with the last video and definitely you will find the answer for that. The fourth one is what, मतलब थर्ड ये सब पॉइंट भी इजीली कवर हो गए। फोर्थ वन ये जो पॉइंट है, इफ ए बी इज डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए इज डिफाइंड। इसका मीनिंग क्या होगा, समझ लो मैंने अगर ए लिख लिया, ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4 है और बी है वो 4 क्रॉस 5 है, तो ए बी क्या होगा, डेफिनेटली 3 क्रॉस 5। अब मुझे बी ए डिफाइन करने के लिए अगेन मैंने क्या लिख लिया, चलो बी ए की पोजीशन ऐसे बन गई ना, पहले बी लिखा है फिर ए लिखा है, तो बी ए डिफाइन होगा क्या, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे ए बी डिफाइन है, ए इंटू बी डिफाइन है, बट बी ए डिफाइन है क्या, नहीं है। सो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि इफ़ ए बी इज डिफाइंड देन इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट बी ए इज ऑलवेज डिफाइंड। मतलब ए बी अगर डिफाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो, बट इफ़ बोथ ए एंड बी, अगर दोनों ए एंड बी दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिसेस है, मतलब अगर मैंने ए मैट्रिक्स को भी, यार ये क्या हो गया, सॉरी अबाउट द डिले, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई कंप्यूटर। हाँ, मतलब ये जो बोल रहे हैं वो लोग कि ए एंड बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, देन ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड। मतलब अगर ए को 3 क्रॉस 3 ले ले, सिमिलर ऑर्डर है ना, क्या लिखा है, सेम ऑर्डर, दोनों को सेम ऑर्डर में लेंगे, मतलब बी को भी 3 क्रॉस 3 लेंगे, तो डेफिनेटली ए बी क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर है, देन फाइनल ऑर्डर विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों को मिला के बनेगा वो 3 क्रॉस 3 बनेगा। एंड बी ए इज ऑल्सो डेफिनेटली 3 क्रॉस 3 ही बनेगा। सो दिस इज पॉसिबल व्हेन ए एंड बी बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड हैविंग सिमिलर ऑर्डर, अदरवाइज नॉट। ओके, अगर अलग अलग तरह के ऑर्डर है ये दोनों के, तो ए बी का मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है एंड बी ए का भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज व्हाट द सिंपल रूल्स टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। समझ में आना ज़रूरी है, याद ऑटोमेटिक रह जाएगा अगर आपको समझ में आ गया तो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आई नीड टू मग अप ऑल द पॉइंट्स इन सीक्वेंस। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। मैं कभी ऐसा नहीं पूछूंगा आपको लेक्चर में या फिर बाहर या फिर कोई क्वेश्चन में कि बताओ चलो बच्चों मैट्रिक्स का पहला रूल्स मल्टीप्लिकेशन का क्या था, सेकंड रूल्स में क्या आता था, थर्ड रूल्स में क्या आता था। जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है। यू नीड टू रिमेंबर दोज ऑल पैटर्न्स इन अ सीक्वेंस कि भाई पहले रूल्स में यही बोलना है, दूसरे रूल्स में यही बोलना है। यहाँ पे ऐसे कोई ऐसी याद रखने वाली चीज़ है ही नहीं। जस्ट समझो एक बार कि भाई ए मैट्रिक्स ऐसा है, बी मैट्रिक्स ऐसा है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या रूल्स है, बस एक बार माइंड में आ गया, डेफिनेटली इट विल बी वर्कआउट। ये इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये मल्टीप्लिकेशन की जो चीज़ है वो सिमिलर टू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर जैसे मल्टीप्लाई होते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। 2 3 का पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को करो, या फिर पहले 3 4 को मल्टीप्लाई करो, फैन आफ्टर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सिमिलर रिजल्ट। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे सिंपल वाले मल्टीप्लिकेशन में, सिंपल वाले नंबर में 2 इंटू 3 इंटू 2 दोनों एक ही है। बट अगर दो मैट्रिक्स, दो
दोनों चीज़ मैट्रिक्स में है, मतलब ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली इन दोनों के आंसर सिमिलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सिमिलर होता है बट ये होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा, हमेशा ही ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। सो यू नीड टू मेंटेन द सीक्वेंस, पहले कौन सा लिखा है दूसरे बाद में कौन सा लिखा है, दैट इज़ ऑलवेज मैटर्स, वो हमेशा ही मैटर करेगा। सो कभी भी कुछ भी लिखो, जैसे यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन ए के साथ बी एंड ए के साथ सी। तो कोई बंदा ऐसा बोलेगा सर मैंने इसको ऐसे भी लिख देना है बी ए प्लस सी ए, तो मैं बोलूँगा चलो ऐसा नहीं चलेगा बच्चे, पहले बी के साथ ए करोगे फिर सी के साथ ए करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले ए दिया है, इट मीन्स ए को आगे ही रखना है देन बी लिखना है, और आगे इसमें भी ए को आगे ही रखना है देन सी लिखना है। सो ऑलवेज यू नीड टू थिंक ऑफ सीक्वेंस कि कौन सा नंबर पहले था कौन सा नंबर बाद में था। ओके, दिस इज व्हाट आई एन इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई एन, दिस इज व्हाट, यहाँ पे और समझाने के लिए थोड़ी मैं इरेज कर लेता हूँ, ये स्पेस बना लेता हूँ, सॉरी अबाउट द, हाँ आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट ए ऑलवेज। जैसे आई मतलब वन जैसा होता है, सिंपल सादी नंबर सिस्टम में वन के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करो डेफिनेटली विल फाइंड दैट नंबर। तो मैट्रिक्स में आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल फाइंड ए, और उसमें कोई भी सीक्वेंस रखोगे तो भी चलेगा, मतलब ए को आई के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे देन ऑल्सो यू विल फाइंड ए। मतलब उसका ये हुआ कि ए आई एंड आई ए दोनों सेम है, इसमें सीक्वेंस चेंज करोगे तो चल जाएगा, ए आई इक्वल टू आई ए। ओके, एंड द फिफ्थ वन इज ए इंटू ज़ीरो, सी ए इंटू ज़ीरो मैट्रिक्स, हाँ ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, और दोनों के अगर सिमिलर ऑर्डर है, अगर सिमिलर ऑर्डर है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ए ओ का और ओ ए का, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हमेशा ही ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो मैट्रिक्स ही होगा। ये क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो, हाँ ज़ीरो डार्क या फिर ओ मैट्रिक्स। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ओ मैट्रिक्स, हाँ इट इज़ नॉट ज़ीरो, हाँ ज़ीरो नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, नथिंग सीरियस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी डिफ़िकल्ट हो, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन करना सीखना है। और अगर डाउट है देन डाउट क्लास में, लाइव लेक्चर में आप मुझे पूछ लो एक बार कि हाँ सर और एक बार दिखा दो लाइव, ताकि मुझे पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। डेफिनेटली विल सी इन डाउट क्लास। सो आज का जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं शाम को 4 बजे, वो लेक्चर में विल स्टडी अगले लेक्चर में वीडियो 4 में जो पढ़ा था और आज का जो 5th वीडियो है, दोनों लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब दोनों लेक्चर के डाउट स्टडी करेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर मैं अगेन मैं बड़ा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन इज़ ओवर इन द फ्रॉम द एनसीईआरटी फॉर्म पोर्शन। एनसीईआरटी फॉर्म से अगर मैं देखने जाऊँ तो थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक पॉइंट है जो जेडब्ल्यू का है, चलो साथ में इसको भी करवा लेता हूँ ताकि थियोरेटिकल फॉर्म टोटल खत्म हो जाए एक्सरसाइज के पहले का। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्या है मैंने एक एग्जांपल के साथ दिखाना है आपको। चलो पहले तो ये हमेशा ही पॉसिबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, ओके स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। समझ लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे कोई एलिमेंट है, तो इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस होगा बस ये जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उसका एडिशन हुई उसका ट्रेस है, नथिंग एल्स। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में ये तीन जो एलिमेंट है, ये जो तीन एलिमेंट है उसको ऐड कर दो, यू विल फाइंड ट्रेस ऑफ ए। ओके, सो द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल भी कौन से, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रेस एंड विच इज डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। ठीक है सिंपल। और ये छोटे मोटे थोड़े रूल्स है, इफ़ यू वांट टू प्रूव इट यू कैन प्रूव इट यूजिंग एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो उसके साथ के को मल्टीप्लाई करो एंड देन इफ़ यू फाइंड ट्रेस, और अगर ट्रेस पहले फाइंड कर लो उसके बाद के को मल्टीप्लाई करो, यू विल फाइंड सिमिलर रिजल्ट। Similarly, trace of a minus b equal to trace of a minus trace b. Again, it is also simple task to prove. If you want,
यू कैन टेक एग्जाम्पल्स एंड दोनों साइड सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हो। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए बी का ट्रेस एंड बी ए का ट्रेस हमेशा ही सिमिलर रहेगा। ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए डैश इक्वल टू सेम। ए डैश एक नई चीज़ है, इसको हम ट्रांसपोज बोलेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज को, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या पढ़ना है, सिंपल है, बस आगे देख लेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है ट्रेस ऑफ आई एन, मतलब आई एन मतलब समझ लो मैं अगर ट्रेस ऑफ आई थ्री लिख लूँ तो आई थ्री क्या होता है, तो 1 0 0 आई थ्री मतलब 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसका ट्रेस, इसका ट्रेस क्या होगा, अगर ये आई थ्री है तो ये इसका आई थ्री का ट्रेस क्या होता है, ऑब्वियसली 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स अगर मुझे ट्रेस ऑफ आई फोर फाइंड करना है तो क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स अगर मुझे ट्रेस ऑफ आई एन फाइंड करना है देन ये 1 1 1 ऐसे n बार ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा n। सो ट्रेस ऑफ आई एन इज इक्वल टू n एंड ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो जीरो। जीरो मैट्रिक्स भी कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर वाला अगर कोई जीरो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस फाइंड करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली वो सभी जीरो ही आएंगे, सभी एलिमेंट, सो डेफिनेटली उसका ट्रेस भी जीरो ही आता है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूँ, चलो क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल वैसे तो सिंपल ही है। ए एंड बी का एडिशन पूछा है तो बस ए एंड बी को बस ऐसे ही ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग पोजीशन को, यू विल फाइंड द आंसर। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव लेक्चर्स। 2a - b, इसको भी मैंने होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या करना है इसमें भी बता देता हूँ। पहले a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब a के सभी एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी 2a, और उसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर लो, डेफिनेटली यू विल फाइंड 1 मैट्रिक्स। अगर डाउट है तो मुझे पूछना अपने आप हमारे लेक्चर में। देन सॉरी ये प्रोसेस पता नहीं चल रहा है, आज प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, अगर मैट्रिक्स ए ये है, बी है, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5b। ओके, इट इज़ अगेन सिंपल टास्क, 2a + 3x = 5b। सो इफ़ आई वांट टू फाइंड x तो मैं क्या करूँगा, x को फाइंड करने के लिए x को पहले सब्जेक्ट बना लेता हूँ, 2a को इस तरफ ले लेता हूँ। आई कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन इन मैट्रिक्स ऑल्सो। मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन उसमें सीक्वेंस देखनी है, और अगर प्लस माइनस में चेंज करना है, मतलब यहाँ से इस तरफ भेजना है या उस तरफ से इस तरफ भेजना है, देन इट इज़ एज सिंपल और एज सिमिलर एज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जैसे हम यहाँ वहाँ भेज देते हैं इक्वल के इस तरफ या उस तरफ, वैसे ही हम मैट्रिक्स में भेज सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर दैट, वही सिमिलरिटी है। एंड देन 3x = 5b - 2a जो है उसमें अगर x फाइंड करना है तो 3 को डिवाइड कर दो दोनों के नीचे। सो नाउ इफ़ यू वांट टू फाइंड x देन व्हाट यू कैन डू, पहले b के अंदर 5/3 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये सभी एलिमेंट को 5/3 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल फाइंड 5/3b। मतलब स्पेशली आप पहले 5/3b फाइंड कर लो एंड फाइंड 2/3a, इसको भी फाइंड कर लो। मतलब इसका आंसर कैसे बनेगा, तो a के सभी एलिमेंट को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको भी 2/3 से, इसको सभी एलिमेंट को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल फाइंड 2/3a। देन सब्ट्रैक्ट दिस 2, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल फाइंड x। ओके, तो दिस इज अगेन सिंपल टास्क। एग्जाम्पल 9 में चलो नेक्स्ट में ऐसे तो ले लूँगा, वैसे अगर करना है तो सिंपल ही है, चलो कर ही देते हैं। x + y दिया है, से इट इज़ a, एंड x - y से इट इज़ b। इसको मैंने a मैट्रिक्स बोल दिया, इसको मैंने b मैट्रिक्स बोल दिया। चलो, तो इफ़ आई टेक एडिशन ऑफ दिस 2, मैं अगर ये दोनों को ऐड कर दूँ, इट मीन्स कि आई एम टेकिंग व्हाट यू कैन से एलिमिनेशन मेथड। आज पता नहीं ये स्पीड ऑफ माई कंप्यूटर डजंट हेल्प मी आउट, मुझे हेल्प नहीं कर रही है। हाँ, ये x है, ये है। ओके, इफ़ आई एलिमिनेट y then we'll get 2x = a + b, and similarly if I'll subtracting this 2,
अगर मुझे x को रिमूव करना है तो मैं सभी को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो एक्स विल गो ऑन, y प्लस वाई 2y इक्वल टू a माइनस बी। सो इफ आई वांट टू फाइंड x, देन x कैसे फाइंड होगा, तो a प्लस बी के एलिमेंट को, मतलब पहले a प्लस बी फाइंड कर लो, देन उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल फाइंड 1/2 x। एंड अगर y फाइंड करना है तो a माइनस बी पहले फाइंड करो, उसके बाद उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल फाइंड y। सो दिस इज अगेन सिंपल टास्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, एज सिंपल एज इट इज़। पहले 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 टू ज़ा 10 प्लस 7 टू ज़ा 14, देन 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। देन ये दोनों को ऐड करो, एडिशन हो सकता है, हाँ दोनों के ऑर्डर सिमिलर है, तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दूँ, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3, ये बन जाता है 10 माइनस 4 दैट इज 6, 14 प्लस 1 दैट इज 15, 2y माइनस 6 प्लस 2 दैट इज 2y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7 6 15 14। नाउ इफ आई विल टेक सी, ये 6 और ये 6 सिमिलर है, हाँ है, ये 15 ये 15 सिमिलर है, हाँ है, ये दोनों भी सिमिलर होने चाहिए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है, ये दोनों भी सिमिलर होने चाहिए। सो इफ आई टेक 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, आई विल फाइंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4/2 2 एंड 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, देन y इक्वल टू 14 प्लस 4 18/2 9। सो I can easily find the answer of x and y by comparing two matrices if they both are similar. Then example 11 we'll see in our live lecture if possible। AB का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, आप अगर होमवर्क में कर सकते हो तो ट्राई करो इसको भी। देन इसमें AB फाइंड करो पहले, फिर BA फाइंड करो, एंड देन ऐसा चेक करो, शो करो कि AB एंड BA दोनों सिमिलर नहीं है, तो AB का आंसर एंड BA का आंसर, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, दैट यू नीड टू शो इन दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ अगेन सिंपल टास्क, आई विल गिव यू दिस वन इज ऑल्सो इन होमवर्क। मल्टीप्लिकेशन वाली टास्क है, अगर नहीं समझ में आ रहा है देन डेफिनेटली वी विल सी इन आवर लाइव लेक्चर्स। अगेन AB फाइंड करना है, BA फाइंड करना है, एंड यू नीड टू शो दिस AB एंड BA दोनों इक्वल नहीं है, बस वो शो करना, मतलब AB फाइंड करो, BA फाइंड करो, और दोनों के आंसर अलग अलग आ रहा है, बस बोल दो कि चलो AB का आंसर ये है, BA का आंसर ये है, दोनों इक्वल नहीं है, दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड, इफ AB एंड BA बोथ आर डिफाइंड, अगर दोनों डिफाइन है देन इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA। अगेन अगर दोनों डिफाइन है तो भी जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, हाँ वंस अगेन अगर AB एंड BA दोनों डिफाइन है then it is always not necessary, say suppose A मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 5 एंड B मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 3, तो AB मैट्रिक्स क्या होगा, then it will be 3 क्रॉस 3 डेफिनेटली, ये पहला वाला और लास्ट वाला बराबर। एंड अगर BA मैट्रिक्स में बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बनेगा, इसमें ये दोनों सिमिलर है तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 5 क्रॉस 5, सो BA इज ऑल्सो पॉसिबल ओवर ईयर। तो मैंने क्या लिखा है, AB एंड BA अगर दोनों डिफाइन है, यहाँ पे AB एंड BA दोनों डिफाइन है, देन इन जनरल AB एंड BA दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल, ओके। बट इफ दे आर इक्वल, अगर AB एंड BA इक्वल है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स आर कॉम्यूट। ये एक्चुअल में मैथमेटिकल सेंटेंस है कि अगर AB एंड BA दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स आर कॉम्यूट। कॉम्यूट वर्ड तो वैसे भी फेमस है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैच हो रही है, जैसे 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2, 2 × 3 इक्वल टू 3 × 2, दोनों का आंसर 6 है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिमिलर है। इसमें कोई भी सीक्वेंस रख सकते हैं, बट ये सिंपल वाली नंबर सिस्टम में चल जाता है हमेशा ही, सिंपल नंबर में ये हमेशा ही चल जाता है, बट मैट्रिक्स के अंदर हमेशा नहीं होता, ओके। अगर पॉसिबल है, इफ AB एंड BA इक्वल है तभी हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, मतलब ये मैट्रिक्स कॉम्यूट है, ये मैट्राइसिस जो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कॉम्यूटेटिव है, वो कॉम्यूट है। अगर AB एंड BA में पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ रहा है
तो हम वहाँ पे बोलेंगे मैट्रिक्स आर एंटी कम्यूट्स. अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट hold n matrices. That is what the simple things is you always need to keep in your mind. Clear? यहाँ पे AB मैट्रिक्स फाइंड करना है. जस्ट सी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो. सिंपल. अगर A 0 है और B 0 है देन AB इज ऑलवेज 0. व्हाट डज इट मीन्स? मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है वो 0 0 0 0 है और B जो है वो कुछ 1 2 3 4 है तो उसका आंसर भी 0 0 0 ही आएगा. मतलब ये दोनों में से किसी एक का 0 होना ज़रूरी है. किसी एक मतलब आइदर A 0 होगा या फिर B 0 होगा या फिर दोनों 0 हो सकते हैं. मतलब A अगर 0 है एंड B 0 नहीं है तो भी A B 0 होगा. अगर A 0 नहीं है एंड B 0 है तो भी A B 0 होगा. और अगर A 0 है B 0 है तो भी A B 0 होगा. मतलब A और B दोनों में से कोई भी एक भी 0 है तो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 0 होगा. बट इफ बट वट एवर अगर A B 0 है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी. ये खास ध्यान रखना. देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ये दोनों में से कोई भी एक 0 हो या दोनों 0 हो. हाँ, ये बहुत ही बढ़िया नोट है. जैसे मैं एग्जांपल में ले लूँ कि चलो 1 0 0 2 से मैं यहाँ पे भी 0 ले लेता हूँ. ये ए मैट्रिक्स है. ये 0 मैट्रिक्स है क्या? तो बोलेगा बंदा नहीं सर नहीं है ये. चलो मैं दूसरा एक नंबर ले लेता हूँ 0 0 0 3. ये 0 मैट्रिक्स है क्या? नहीं. तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? A नॉट इक्वल टू 0 एंड B नॉट इक्वल टू 0. बट ए बी अगर मैं फाइंड करने जाऊँ देन यू विल फाइंड 0 0 0 0. रो कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल फाइंड 0 0 मैट्रिक्स. मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए बी 0 है तो वो सिचुएशन में ए एंड बी आप देख सकते हो ए एंड बी दोनों में से एक भी 0 नहीं है. सो अगर ए बी 0 है देन इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0. दोनों में से एक भी 0 नहीं भी होगा तो भी मल्टीप्लिकेशन कैन बी 0. ओके. सो ये रूल्स लिखो. उसके बाद जो मैं एक एग्जांपल दिखा दो. पहला वाला रूल्स लिखो. उसके बाद जो मैं ये वाली चीज़ दिखा दो. दैट्स व्हाट द सिंपल थिंग दैट यू कैन राइट इन योर बुक टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल. एग्जाम्पल 16 अगेन थोड़ा लेंदी है. देखने से ये लगता है. देखो पहले बी सी मल्टीप्लाई करो देन उसके बाद ए मल्टीप्लाई करो देन यू कैन फाइंड ए इंटू बी सी. फिर ये ए बी सी मतलब क्या हुआ? पहले ए बी मल्टीप्लाई करो उसके बाद उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो. पोजीशन डज मैटर. हाँ, ए बी का जो भी आंसर आएगा वो आगे रखना है फिर सी का आंसर रखना है. देन जैसे ये ए बी है और ये सी है और देन मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो लाना है. ठीक है. और ये a इंटू बी सी में क्या है? पहले a लिखना है एंड देन आंसर ऑफ बी सी यू नीड टू राइट एंड देन आंसर फाइंड करना है. सो यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ a इंटू बी सी और a b इंटू सी इन सच अ वे लाइक दिस एंड यू विल ऑलवेज फाइंड a b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी. ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस के लिए है. ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे 110%. बट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली. एग्जाम्पल 17 ये तीनों मैट्रिक्स से बस ये जो पूछा है उसके हिसाब से फाइंड करके देख लो एंड वेरीफाई कर लो अगर पॉसिबल है तो. एंड इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी. एग्जाम्पल 8 चलो मैं करवा लूँगा ऐसा है तो नेक्स्ट लेक्चर में. देन बस इतना है. बस तो ये आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. चलो आज जितना मैंने बताया उतना और थोड़ा बहुत होमवर्क ट्राई करो. जितना हो सके उतना होमवर्क ख़त्म करना है. एंड लाइव लेक्चर में अगर डाउट है तो मुझे पूछने हैं. ठीक है. सो आज का जो सेशन है उसमें हमने क्या पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन के जो थोड़े बहुत रूल्स थे वो रूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं. तो लास्ट लेक्चर में जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था कैसे करना है वही मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वही मल्टीप्लिकेशन के जो भी कंसेप्ट हमने देखे थे उसके हिसाब से ही रूल्स यहाँ पे लिखे हैं. अगर कभी भी डाउट्स आए तो आप ये रूल्स को एक बार देख के भी याद कर सकते हो कि कैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है.
and I have given some of the concept, some of the understanding about this property also, how can we use this property, and some of the example I have solved, and some of the example I have given you in homework. So if possible, you can solve each and every examples, each and every question, so that you can make maximum practice at your home. And if you have any doubts in my lecture, you can ask me in video session, live video session. Okay, thank you.